Yes, so what is the standard form of the Bernoulli equation? So that will be, sorry, Bernoulli का already done है. So next is the reducible form, that is in form of f dash of y dy upon dx plus p f of y. So जो actual form होता है that is the dy upon dx plus py, this is equal to q. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे y की जगह f of y है. तो ये f of y को हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो नया वेरिएबल दैट इज सपोज दैट v सब्स्टिट्यूट कर लिया. सो लेट f of y equal to v. Now differentiate with respect to x on both the sides. So that will be f dash of y into dy upon dx, and this is equal to dv by dx. Okay, understood. So now substitute all this thing in first equation. So f dash of y into dy upon dx is nothing but dv by dx, and p of v, this is equal to v. So finally it is a linear differential equation. Okay, so what is the next step? Just tell me what is the next step. Yes, anybody else? Yes, any students? How to solve this equation? Suppose that linear differential equation dy upon dx plus py equal to q is a given. So how to solve this equation? What is your first step? Am I audible? Hello. Okay, so mu equal to integration of p dx. And next to find general solution, right now. So how to find general solution? What is the formula of that? According to this, yes, anybody else? Already have covered all this topic. This is the linear differential equation in last lecture. So how to find the general equation? Mu into v, this is equal to integration of yes, q mu into dx. into And now resubstitute the value of v. So then what is the next step after substituting value of v? So we will get mu into f of y equal to q into f of y, sorry, q into mu dx. So this is the formula of general equation, general solution, and this is your integrating factor. तो आपको ये टू थिंग्स मेमोराइज रखना है. अब इस पे पहला सम सॉल्व करते हैं. dy upon dx, this is equal to e to the power x, e to the power minus y, e raised to x, e raised to y. In next step,
e रेज टू y से डिवाइड करेंगे, या फिर इसको लिख देता हूँ ऐसे, दैट इज e रेज टू x, e रेज टू x, e रेज टू y divided by e raised to y. In next step, that is e raised to y into dy upon dx plus plus nahi, this is equal to e raised to 2x minus e raised to x into e raised to y. So after simplification this expression, that is dy upon dx plus e raised to x into e raised to y. This is e raised to 2x. So this is in form of f dash of y into dy upon dx plus p into f of y equal to q, because this is nothing but f of y और ये उसका डेरिवेटिव है, राइट? तो सेपरेटली लिख देते हैं अलग से. So that is f of y is nothing but e raised to y, p equal to e raised to x, q equal to e raised to 2x. So in first step, find the mu. Formula is e to the power p dx, and p is nothing but e raised to x, or integration of e raised to x is e raised to x. Now find general solution. So formula is f of y into mu into q into mu dx plus c. So that is f of y is e raised to y and mu is e raised to x. This is equal to e raised to x, value of q is e raised to 2x, and mu is e raised to x dx plus c. Okay, now put e raised to x equal to t. So finally e raised to x dx, this is equal to dt. Understood? Yes, sir. Okay, so now all substitute all these things in this integration, then we will get e to the power y, e to the power e raised to x. This is equal to e raised to actually in this equation integration, that is e raised to 2x. e raised to 2x गिवन है, बट यहाँ डिफरेंशिएट किया तो e raised to x आया, तो एक e raised to x को हम लोग t पुट करेंगे और दूसरा dx dt बन जाएगा. ये समझ में आया क्या? Yes, sir. अब बाद में इसको u into v का एक फॉर्मूला से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लेंगे. सो दैट विल बी u पोजीशन पे ये ये e रेस टू क्या है, ये e रेस टू t नहीं है, सिर्फ t है, ठीक है? बिकॉज ये जो टर्म है इसमें से मैंने इसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया, e रेस टू x और e रेस टू x. e रेस टू x के साथ dx जाके ये बन जाएगा कंप्लीट dt, बट एक e रेस टू x को t पुट करेंगे और इधर पावर में भी t पुट करेंगे, तो फाइनली t e रेस टू t आएगा. तो t अपने पोजीशन पे आ गया, t का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, इसलिए यहाँ तक ही लिखेंगे. एंड नाउ इंटीग्रेट e टू द पावर t, तो e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t, फर्दर इंटीग्रेशन एज वेल एज e रेस टू t. फाइनली e रेस टू t को कॉमन लिया तो t minus 1 plus c. Now substitute the value of e raised to t, that is e raised to x. So e raised to y, e raised to power e to the power x, that is e raised to x into e raised to x minus 1 plus c. This is your final answer. Read out. No, sir. So go for the next question. dy upon dx plus x into sine of 2y, this is equal to x cube cos square y. Now divide by cos square on both the side. Divide by cos square y on both sides. So finally 1 upon cos square y dy upon dx plus x, and this is nothing but sin x into cos x, because sine of 2x is nothing but 2 sin x into cos x. Is it clear?
this is equal to x cube. Now this will be converted into sec square y dx upon dy plus x into divided by इधर भी आने वाला है, that is cos square y, ये सॉरी y है. So cos square y and cos y is cancelled to each other. So finally is 2x tan y equal to x cube. So this is in form of f dash of y dy upon dx plus 2x f of y equal to q, where f dash of y is nothing but sec square y and f of y is tan y because tan y का derivative sec square y होता है, and p is nothing but 2x and q equal to x cube. ये समझा आप लोगों? Yes, sir. And now what is the first step? Find the integrating factor e to the power p dx. E to the power p, p is nothing but 2x dx. So that is x square by 2 and 2 cancel to each other. So finally e raised to x square. Now next find the general solution. So f of y into mu into q into mu into dx plus c. F of y is nothing but tan of y and mu का value e to the power x square. Q is nothing but x cube e to the power x square dx. तो प्लस सी, इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स. बोलो ये समझा एडजस्टमेंट? Yes, sir. 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड भी करके रखता हूँ, फिर इधर पुट कर लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, सो 2x dx इक्वल टू dt. तो फाइनली दिस विल बी इज नथिंग बट dt. ओके, so 1 by 2 and x square is t e to the power t, this is dt. Is it clear? यहां तक समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ ये? Yes, sir. And after that integrate this expression, I mean right hand side, by using u into v rule. Rule 2, u integration of v minus derivative of u integration further integration of v like that. बट ये सिर्फ 2 स्टेप में फिनिश हो जाएगा बिकॉज t एंड t का डेरिवेटिव 1 एंड 1 का डेरिवेटिव 0, तो फाइनली 2 स्टेप में स्टॉप होगा. एंड e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t फर्दर इंटीग्रेशन e रेस टू t प्लस c. Then taking e raised to t common from this bracket, so that is e raised to t divided by 2 t minus 1 plus c. Now substitute the value of t, so t is nothing but x square. So finally answer is e raised to x square tan of y, that is e raised to x square into t is nothing but x square minus 1 plus c divided by 2. This is your final answer. Is it clear? कोई डाउट है? No, sir. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. So dy upon dx plus x sin 2y equal to x cube minus x cube sin square y. Now dy upon dx plus x sin 2y, x cube कॉमन लिया तो that is 1 minus sin square y and dy upon dx plus x sin 2y, that is x cube cos square y. राइट ना? आगे का सेम एज एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा बन गया. ठीक है, dy अपॉन dx x sin 2y x क्यूब cos स्क्वायर, और ये एग्जांपल 2 यही दिया है, देखो राइट ना?
ओके सर। तो ये समझ में आया ना आप लोगों को टॉपिक फाइनली? यस सर। So first of all, what is the meaning of exact differential equation, right? So just I will give some example for this. Suppose that d upon d of x into y ऐसा लिखा है, तो what is the derivative of this? That is x dy plus y dx. Is it clear? ये समझा? ये dxy को ऐसे लिख सकते हैं, अंडरस्टूड? यस सर। सेकेंड, सपोज दैट मैंने ऐसे लिखा है d अपॉन x अपॉन y, देन दिस इज u by v रूल, तो y एज इट इज x का डेरिवेटिव dx माइनस x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy द होल डिवाइड बाय y स्क्वायर। d ऑफ, सपोज दैट मैंने लिख दिया x x स्क्वायर साइन y, साइन x, साइन y लिख दिया, देन बोलो इसका आंसर क्या है? अब जरा आप बताओ। x स्क्वायर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos y cos y into dy प्लस sin y as it is 2x and 2x dx। ये समझ रहे हैं? तो ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म। अभी जरा इसको रिवर्स में मैं पूछता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? x dy माइनस y dx द होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? d ऑफ व्हाट? y by x। y बाई एक्स। सो कोई भी ऐसा, अब ये एक्चुअल में तो डिफरेंशियल इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को आप डी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख दिए। लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है ना कि आप हर एक इक्वेशन को ऐसे डी अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिख पाओ, नॉट नेसेसरी, अंडरस्टूड? तो कोई भी इक्वेशन आपके सामने दिया है, उसको अगर आप डी ऑफ समथिंग के फॉर्म में अगर लिख पाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर नहीं लिख पाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी लेफ्ट में एक्सप्रेशन लिखा है x dy माइनस y dx डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये तो आपको डायरेक्टली दिख गया, तो dy अपॉन लिख दिया। तो इस तरीके से फाइनली आपको ये पता चल गया कि अगर सपोज दैट लेट m dx प्लस n dy, अगर इसको मैं d ऑफ x कॉमा y के टर्म में लिख पाता हूँ, दिस इक्वेशन m dx प्लस n dy, कोई भी यहाँ पे एक्सप्रेशन आ सकता है, जैसे अभी ये लिखा है x dy प्लस y dx, इसको आप d ऑफ x कॉमा y लिख पा रहे हो क्योंकि उसी का वैल्यू दिखाया मैंने, x y लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे d ऑफ x अपॉन y, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में m dx प्लस n dy, अगर उसको हमने d ऑफ x कॉमा y एक फंक्शन के टर्म में लिखने में अगर सक्सेस हो गए, इसका मतलब कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मींस m dx plus n dy equal to 0 is said to be exact, understood? ये exact का मीनिंग क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये सबके सब किसके एग्जांपल्स है? एग्जैक्ट वाले, राइट? क्योंकि इसको डायरेक्टली आप d ऑफ समथिंग लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, सपोज दैट x क्यूब माइनस साइन y dy प्लस cos y 3x स्क्वायर dx इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है, कैसे पता चलेगा? तो पहली बात, आप इसको डायरेक्टली ऐसा d ऑफ समथिंग लिख पाता है क्या? चेक करो। तो d ऑफ है क्या कोई एक्सप्रेशन? ये नहीं। नहीं है। शायद इसको ट्राई करके देखो, x cos y,
देखो इसको रिवर्स में सॉल्व करके देखो आता है क्या हो। एक्स क्यूब कॉस का माइनस साइन वाई डी वाई प्लस कॉस वाई एक्स क्यूब का 3x² dx, राइट। तो है ये ऐसा लिख सकते, बट ये कोई टेक्निक मतलब दिस इज नॉट प्रॉपर टेक्निक ही आप आइडेंटिफाई करो कि इसको लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब दैट इज एग्जैक्ट और नॉट। तो कैसे पता करेंगे, क्या है अपने पास टेक्निक मेथड्स जिससे कि आप ये पता करो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये जो एग्जैक्ट है। क्यों एग्जैक्ट है? क्योंकि इसको हम लोग डी ऑफ एक्स कॉमा वाई के टर्म में लिख पा रहे हैं, एग्जैक्ट डेरिवेटिव के टर्म में लिख पा रहे हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, अगर उसको एग्जैक्ट डेरिवेटिव यानी डी एक्स कॉमा वाई को हम लोग एग्जैक्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, एग्जैक्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में अगर आप लिख पा रहे हैं, दैट मींस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मुझे जरा बताओ, we know that what is the formula of exact derivative? ये आपने लास्ट लेक्चर लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन? किसी को याद है? ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा था, देखो जरा। यस, किसी ने ये इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ा है प्रीवियस सेमेस्टर में? दिस इज कॉल्ड एज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव du. So this is a relation between exact derivative and partial derivative of u. Understood? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है du इक्वल टू समथिंग, ये आपने पहले लास्ट सेमेस्टर में पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखा था क्या ये फॉर्मूला? हाँ सर। तो ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव का रिलेशन है, और मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव तभी होगा, मतलब ये दिस इज द डी यू वेयर यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई लाइक दैट। तो ये एग्जैक्ट तभी होगा जब भी उसको हम लोग एग्जैक्ट डेरिवेटिव यानी डी यू के टर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो मैंने एग्जैक्ट का डेफिनेशन बताया, ये फर्स्ट लाइन में एग्जैक्ट का डेफिनेशन। नाउ वी नो दैट ये लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, अब दोनों को कोरिलेट करो, यानी कि फर्स्ट एग्जैक्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग du कैन बी रिटन एज m dx plus n dy, right? And as per the partial differentiation concept, that is dou u upon dou x into dx plus dou u upon dou y into dy. अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, बिकॉज दोनों एक ही फॉर्मेट से रिलेटेड है। सो देयरफॉर m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? m इक्वल टू dou u upon dou x and n equal to dou u upon dou y. Again differentiate m, partially differentiate with respect to y. So dou m upon dou y equal to double derivative of u with respect to x and y. Similarly, partially differentiate with respect to x to n. So n dou n upon dou x is nothing but dou square u upon dou x and dou y. तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया? ये जो दोनों के लेफ्ट साइड है राइट साइड है वो इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है कि नहीं? बोलो। तो फाइनली आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि डो एम अपॉन डो वाई मस्ट बी इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आप समराइज कर सकते हैं नंबर 1 कि इफ डो एम अपॉन डो वाई एंड डो एन अपॉन डो एक्स इक्वल है, देन the differential equation m dx plus n dy equal to 0 is said to be exact differential equation. Understood? Similarly, if m dx plus n dy equal to 0 is exact, then dou m upon dou y
equal to dou n upon dou x. ठीक है, इस converse is also true. If dou m upon dou y equal to dou n upon dou x both are equal, then given equation m dx plus n dy is said to be exact. And converse is also true. That means if m dx plus n dy is exact, then partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x. Understood? So this is the technique to identify given differential equation is exact or not. This is the technique. Is it clear? तो अभी मैं जो इक्वेशन आपको लिख के दूंगा उस इक्वेशन में आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर गिवन m dx plus n dy इज एग्जैक्ट और नॉट. तो उसके लिए m को y के रिस्पेक्ट में, n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. इफ बोथ डेरिवेटिव इक्वल टू ईच अदर, देन फाइनली यू कैन से m dx plus n dy इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो फर्स्ट स्टेप में आपको ये पता करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट. इफ एग्जैक्ट, देन व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन. सो इन नेक्स्ट स्टेप now find general solution. So general solution का proof मैं बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा because little bit the complicated है, but directly मैं general solution का फॉर्मूला लिख देता हूँ. So m जिसके अंदर जो y के टर्म है, treat y as a constant because m के अंदर x and y दोनों रहने वाला है. तो उसके अंदर जो m है उसको m के एक्सप्रेशन में जो y का टर्म है उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, जैसा एक लास्ट स्टेप में किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला भी था. एंड n के अंदर में आपको फ्री फ्रॉम x टर्म dy equal to c, right? This is the formula to find the general solution. Second way, m free from y dx and n treat x as a constant. तो दोनों साइड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब ये फ्री फ्रॉम x टर्म या फिर फ्री फ्रॉम y टर्म and y as a constant, treat x as a constant, what is the meaning of that? But out of two में से कोई एक ही यूज करना है. both are valid for general solution, either first one or second one. ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग इन दोनों में से कौन सा सोल्यूशन यूज करेंगे वो डिपेंड्स कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है. अगर फर्स्ट वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने में काफी डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है तो हम लोग सेकेंड वाला मेथड यूज कर लेंगे. इज इट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. So एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑन बेसिस ऑफ दिस वन. एग्जैक्ट समराइज कर देंगे यहाँ पे. अभी तक जो भी मैंने बताया उसको एक प्रॉपर तरीके से समराइज करके देता हूँ और फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ठीक है, बाकी का न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. स्क्रीन विजिबल है ना, सबको दिख रहा है? Yes, sir. तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया एग्जैक्ट का और उसमें मैंने ये प्रूव करके दिया कि हाउ टू चेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट. तो उसके लिए मैंने आपको वहां पे प्रूव करके दिया कि दैट इज इफ डो m अपॉन डो y एंड डो n अपॉन डो x बोथ आर इक्वल, देन गिवन इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट. वही चीज यहाँ पे मैं समराइज करके दे रहा हूँ. सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन है m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी. अब ये क्वेश्चन इस तरीके का अगर आपके सामने आ गया एंड देन आपको इसको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको चेक करेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डो m अपॉन डो y एंड डो n अपॉन डो x बोथ आर इक्वल और नॉट. इफ बोथ आर इक्वल, तो ये एक मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूँ. इसको प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में फ्लो चार्ट बोलते हैं.
राइट ना, शायद से आपका ये थोड़ा बहुत स्टार्ट भी हुआ रहेगा। आपका पैरेलली एक सब्जेक्ट है जिसको स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग अप्रोच बोलते हैं, दैट इज एसपीए। तो उसमें आपको इस तरीके के सर बता रहे होंगे। तो कोई भी इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, यानी कि जिसका प्रोग्राम लिखना है, मैं थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट हिंट दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द कंडीशन इफ डो एम अपॉन डो वाई एंड डो एन अपॉन डो एक्स बोथ आर इक्वल। इफ yes, suppose that this condition is valid, I mean this is yes, so in that case this equation is called as exact. Otherwise if no, then it is called as non-exact. ये no means what, कि आपका डो एम अपॉन डो आई एंड डो एन अपॉन डो एक्स बोथ आर नॉट इक्वल। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? Yes, sir. हाँ, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एग्जैक्ट है, और इक्वल नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन एग्जैक्ट। अब नॉन एग्जैक्ट है तो आपको इमीडिएट फाइंड आउट करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज म्यू। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए टोटल यहाँ पे 4 अलग अलग मेथड्स है, एक्चुअली बहुत सारे मेथड्स है, और सारे मेथड्स मैं आपको एक लेक्चर में प्रूफ करके दूंगा। जैसे कि मैंने आपको ये प्रूफ करके दिया कि डो एम अपॉन डो आई एंड डो एन अपॉन डो एक्स दोनों इक्वल है तो उसको एग्जैक्ट क्यों बोलते हैं, या एग्जैक्ट के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए, ये बात मैंने दोनों साइड से प्रूफ करके दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के जो टेक्निक्स है वो बहुत सारे टेक्निक्स है। उसमें से हम लोग 4 टेक्निक डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपके सिलेबस में वो 4 टेक्निक मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट टेक्निक, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस है क्या। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा, सपोज दैट गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऐसे केस में आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बनेगा, अगर ये होमोजेनियस है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। और अगर सपोज दैट वो होमोजेनियस नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, एंड वो कंडीशन आपको शायद से मालूम रहेगा कि डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स होल डिवाइड बाई कैपिटल एन, एंड दैट शुड बी प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। अगर ये एक्स का फंक्शन आता है दैट मींस दिस कंडीशन इज वैलिड। इफ एक्स का फंक्शन नहीं आता है, यहाँ पे y का फंक्शन अगर आ जाता है तो फिर ये एक्स वाई मिक्स हो जाता है तो भी ये कंडीशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व करके x का ही फंक्शन आना चाहिए तो जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो इसको सॉल्व करने का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला डिफरेंट है। और अगर ये फेल हो गया, सपोज दैट मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो फिर हम लोग अगला कंडीशन चेक करेंगे, और ये कंडीशन इसी के तरीके का है कि डो एम अपॉन डो आई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स होल डिवाइड बाई माइनस एम, एंड दैट शुड बी फंक्शन ऑफ प्योर वाई। ठीक है, प्योर वाई मतलब यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं चलेगा ऐसे केस में। ओके, तो सपोज दैट दिस इज वैलिड, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सेटिस्फाई होने का मतलब उसके अंदर ये पूरा सॉल्व करके एक्सप्रेशन y का टर्म मिल गया, तो सेटिस्फाई हो गया, तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग होता है। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग होता है। तो एटलीस्ट आपको पता चल गया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ओके, सो अभी सबके इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखने बाकी है यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली एक ही लाइन में ले जाके लिख देंगे तो दैट इज बेटर।
तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लिख रहा हूं, अगर सपोज दैट हो होमोजेनियस है, सो दैट इज mx प्लस ny। सेकेंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि वो डो m अपॉन डो आई माइनस डो n अपॉन डो x डिवाइड बाय n, दैट शुड बी फंक्शन ऑफ प्योर x, purely x function, not involve y. In that case, the integrating factor e to the power f of x dx, and for case 3, that is mu equal to e to the power integration f of y dy, and case 4 mu equal to 1 upon mx minus ny. Is it clear? Yes, sir. तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आया? वापस एक बार स्टार्ट से देखते हैं। अगर वो सपोज दैट होमोजेनियस सॉरी डो m अपॉन डो y इक्वल है, तो फिर डायरेक्टली इसको हम लोग बोल देंगे कि ये एग्जैक्ट, ठीक है। फाइनली दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी डो m अपॉन डो y इक्वल टू इक्वल है, इन दिस केस दिस इज डायरेक्टली कॉल्ड एज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बट सपोज दैट प्रोग्राम में आप देख रहे हो कि अगर ये इक्वल नहीं है, डो m upon डो y and डो n upon डो x, if both are not equal, then it is called as the non-exact. So in non-exact, first of all you have to find them integrating factor mu, and mu find out करने के लिए there are 4 techniques. So first of all you check given differential equation, non-exact differential equation is homogeneous or not. If homogeneous, then your integrating factor is 1 upon mx plus ny, and if not homogeneous, in that situation you have to check this condition, dou m upon dou y minus dou n upon dou x whole divided by n, and that should be function of x only, not y terms involved here. In that situation, the integrating factor is e to the power f of x dx, and suppose that this condition is failed, I mean dou m upon dou y minus dou n upon dou x divided by n, this condition is to be failed. In that case, go for the next condition, that is same or numerator as it is, a denominator is the different, that is minus m, and this pure total function must be, after solving this total expression, the output will come one pure in terms of y. अगर y के टर्म में आता है, then your integrating factor is e to the power f of dy, and अगर y के टर्म में नहीं आता है, तो go for the next condition, जिसके लिए डायरेक्टली आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज कर लेंगे 1 अपॉन mx माइनस ny, राइट। तो आउट ऑफ 4 में से कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करना है, ये आप ही को डिसाइड करना है न्यूमेरिकल को देख के। एंड एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, देन मल्टीप्लाई बाय म्यू इन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। जैसे इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो फटक से ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि स्टार्ट में नॉन एग्जैक्ट था, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ म्यू यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझ में आया? तो आउट ऑफ 4 में से किसी एक से आपको मल्टीप्लाई करना है। कौन सा मल्टीप्लाई करना है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अगर होमोजेनियस है तो पहला वाला म्यू लेंगे, अगर होमोजेनियस नहीं है तो सेकंड कंडीशन चेक करके देख लेंगे, अगर एक्स का टर्म आता है तो म्यू का सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसे करके एंड सो ऑन। और फाइनली आउट ऑफ 4 में से कोई भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप जब सेलेक्ट कर लोगे, देन उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से m dx plus n dy equal to 0 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली वो बन जाएगा एग्जैक्ट। तो ये सारा प्रोसेस तब करना है जब वो डो m अपॉन डो y एंड डो n अपॉन डो x अगर इक्वल नहीं है तो। अंडरस्टूड? फिर इसके बाद ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया, देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, देयर आर 2 टेक्निक। फर्स्ट m, जिसके अंदर y को कांस्टेंट लेना है, y एज अ कांस्टेंट, एंड n के अंदर टर्म फ्री फ्रॉम
फ्री फ्रॉम x dy इक्वल टू c। एंड सेकेंड टेक्निक आप यूज, सेकेंड मेथड यूज कर सकता है, second is suppose that m terms free from y dx एंड n के अंदर सब कुछ लेना है बट y x एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेट करने के टाइम इनटू dy इक्वल टू c। सो देयर आर टू टेक्निक टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, राइट। तो आउट ऑफ में से कोई भी एक टेक्निक हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये जो भी मैंने आज बताया इसको नेक्स्ट लेक्चर में वापस से मैं रिवाइज कर देता हूँ एंड देन इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप एक न्यूमेरिकल देखना चाहेंगे या नेक्स्ट यस सर, ओके ठीक है। आपने बोला ना सर एक करेंगे करके। हाँ ठीक है, नहीं आपका लेक्चर का टाइमिंग था दैट्स व्हाई मैंने बोल पूछा। कोई नहीं, तो इसको एक सॉल्व करके देखते हैं। तो m कंपेयर करो, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से कंपेयर विथ, so what is value of m? M is nothing but x into square root of x square plus y square minus y, and n is nothing but y into square root of x square plus y square minus x. So now first of all find the value of dou m upon dou y. पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट लेते हैं और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे x कांस्टेंट है एंड रूट का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1/2 रूट समथिंग समथिंग, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर का टर्म विथ रिस्पेक्ट टू Wow. y कर रहे हैं इसलिए x कांस्टेंट है एंड दैट इज 2i माइनस 1। एंड सिमिलरली डो n अपॉन डो x भी निकालते हैं, तो इसमें y कांस्टेंट हो गया तो y डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ सेम टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 0 एंड माइनस 1। तो एक लाइन और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं सो दैट आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। दैट इज डो m अपॉन डो i, दिस इज इक्वल टू 2xy, 2 cancel to each other, finally root of x square plus y square, and here dou n upon dou x is equal to minus 1 also, that is xy divided by root of x square plus y square minus 1. So clearly you can see that कि dou m upon dou y and dou n upon dou x both are equal to each other, therefore m dx plus n dy equal to 0 is said to be exact. Understood? जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम लिख के दिया। अभी एग्जैक्ट है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, राइट ना। तो जनरल सॉल्यूशन में जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया दैट इज m, जिसके अंदर m को पूरा लेना है लेकिन y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, y एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेट करते वक्त dx, एंड n के अंदर से आपको सिर्फ वही टर्म लेना है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है, तो टर्म्स फ्री फ्रॉम x, x वाले टर्म्स को छोड़ के बाकी टर्म यहाँ पे लिखने हैं। तो चलो m को कंप्लीटली कॉपी करो, तो क्वेश्चन में देखते हैं m का वैल्यू क्या है। तो अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पे m का वैल्यू है क्वेश्चन में x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो कंप्लीटली उसको कॉपी कर लेते हैं, दैट इज x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। कंप्लीट कॉपी कर लिया, बट इसमें आपको y को कांस्टेंट ट्रीट करके ही सॉल्व करना है एंड n वाले में से x को छोड़ के बाकी सब लिखना है। तो ऐसा कोई टर्म ही नहीं है x n के एक्सप्रेशन में कि अगर x को मैं इग्नोर करूं तो उसमें बाकी कोई बच जाए। देखो ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, उसको हम लोग स्प्लिट कर नहीं सकते, तो वो एक्स स्क्वायर तो जाएगा लेकिन साथ में वाई स्क्वायर और वाई को भी साथ में लेके जाएगा, ठीक है। अगर सपोज दैट n के अंदर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन रहता x y प्लस y, तो ये वाला y तो नहीं लेते बट ये वाला y ले लेते। समझ में आ रहा है क्या?
तो x के टर्म के मल्टीप्लाई में प्लस डिवाइड में अगर कोई टर्म है तो x एलिमिनेट करेंगे तो साथ में उसके y भी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन सेपरेटली अगर सिंगल टर्म जिसमें x दिख नहीं रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर को हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो फाइनली 0 आ जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि f of x whole power n into f dash of x dx, this is directly you can written as n plus 1 divided by n plus 1। सिर्फ आपको ये पता करना है कि इसमें f of x है क्या। तो f of x क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, ठीक है। एंड n का वैल्यू क्या है अगर कंपेयर करेंगे तो ये है f of x, और n यहाँ पे क्वेश्चन में हाफ है, बट इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 2x आएगा। आपके क्वेश्चन में 2x नहीं दिया है, तो मैं यहाँ 2 लिख के 1/2 भी कर देता हूँ। तो फाइनली डायरेक्टली ये फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो 1/2 f of x यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कंप्लीट पावर n यानी कि 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 एंड माइनस, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन। सेकंड पार्ट में y को कांस्टेंट लेना है, और मैंने बताया था कि कांस्टेंट इनटू dx लिखा है तो आंसर x dx x kx आएगा। यहाँ पे y कांस्टेंट है तो y इनटू x आएगा, और दूसरे में तो कुछ टर्म है ही नहीं। इसको सॉल्व करेंगे 3/2 और इसका 1/2 कैंसिल होगा। फाइनली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3 minus xy equal to c. This is your final answer. Understood? ठीक है। यस सर। तो इससे रिलेटेड हम लोग थर्सडे को और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ढेर सारे न्यूमेरिकल का कलेक्शन किया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है। एंड फिर बाद में तो अभी जितना मैंने बताया उसका पीडीएफ में भेज देता हूँ, रेस्ट पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में ले लेता हूँ, ठीक है। यस सर। सर अटेंडेंस। हाँ बस